In the last session, we have talked about trigonometry basics, which is that what are the trigonometry ratios that we have, six the kinds of trigonometry ratios we have, right? Uh, okay. I will discuss the homework question, okay? With you, don't worry. Let's continue because I have to see what homework I did. Okay, so trigonometric basics we will do. First of all, six we have already done. We have already done the six trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, cosec, sec. हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया बच्चों. बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने बात करी थी. And we have figured out how to look in a triangle, in a right angle triangle, how to look for a perpendicular base and hypotenuse. That also we have done. And then some particular NCERT questions we have done, and some extra questions also we made out. Okay. So today we are going to do first exercise, second exercise, first and second exercise ke MCQs, extra questions, boards ke, all of that we are going to discuss today. Okay, first of all, let me put on the first exercise over here. If I recall clearly, I think we have done the first question, second question, third question, fourth one also, fifth one also. I think sixth say we have not done, right? So sixth से will do. हम ऐसा करेंगे एक दो एनसीईआरटी में काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ओके सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी चलो एंड एक और इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि हमें सेकेंड एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना होगा इससे कम आते हैं लेकिन सेकेंड एक्सरसाइज पे हम ज्यादा ध्यान देंगे ओके सो इसको हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 करें भाई स्टार्ट बोलो आई नीड एनर्जी देन ओनली आई विल स्टार्ट Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. करें स्टार्ट बोलो सारे जब मैं Yes, कहूँ sir. Yes, sir. चलो तो देखो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 टुडे and we are going to do lots of beautiful questions. Question number 6. If angle B, A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle. This is given to you and you have been asked to show angle A is equal to angle B. इसके ऊपर बच्चों MCQ आता है, show करने को नहीं आता. I will tell you how, what kind of questions you will get. But let's see what is given. A and B are acute angles. So there are two angles which are acute. A and B. Acute means what? Can anyone tell me what is the meaning of acute? Hmm. Acute का मतलब Less क्या? than 90 degrees. Yes, less than 90 degree, right? So if A and B are acute, that means they have been positioned over here because C is 90. अगर C 90 है दोनों less than 90 ही होंगे क्योंकि अगर एक और 90 हो गया तो बच्चे वो 180 बन जाएगा. पॉसिबल नहीं है कि दो एंगल 180 बनाए, तीन एंगल 180 बनाते हैं. मतलब ये दोनों एंगल पक्का एक्यूट होंगे. This is given to you. That means this kind of a triangle is given to you. Now, cos A is given equal to cos B. Now, if you recall, whatever is in front of this guy will be named as perpendicular. This will be base and this will be hypotenuse. Always. Now, whatever is in front of A will be called as perpendicular. Now, if you remember the formula for cos square, that was base upon hypotenuse. So right now for this cos A, what is the base? The base is which side right now? The base is AC side and the hypotenuse is AB side. For the cos A, we can write this. Now, if I go for cos B, let me take a different color for that. Cos B, that means this time this will be the perpendicular. This will be the perpendicular for this guy. And this will be the base. This will be base for B guy, right? Hypotenuse is always the same. So cos B, how will I write cos B then? B upon H. B upon H. That means this time the B is BC and hypotenuse is always the same. So AB cancels out with AB. You can cancel it out like that. Now AC is equal to BC, bacho. What you are getting, this AC guy side is equal to BC. And whenever in a triangle, two opposite sides are equal, then the angles opposite to it are also equal. Isosceles triangle property, class 8. And angles opposite to are A and angle B. That implies angle A is equal to angle B. एक बार फिर से समझ जिसको समझ में नहीं आया बिफोर यू टेल मी सर एक बार फिर से बता दो okay so we are going to repeat it again what was the question that there is a right angle triangle in which A and B are acute indirectly it is telling you कि A और B पे 90 नहीं बनाना है C पे 90 बनाना है इसका मतलब ये है A and B acute का मतलब okay now it is telling us to show angle A is equal to angle B now cos A is equal to cos B is given to you this is given in the question बच्चों so cos A means this will be perpendicular, this will be the base and this will be hypotenuse. क्योंकि जो भी angle consider होता है उसके सामने वाला we take as perpendicular and rest as it is base and hypotenuse that you already know. Now if you say cos A, the formula for cos theta is B upon H. So B is what? AC, and H is what? AB. So AB is the hypotenuse.
नाउ cos b, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट फ्रॉम cos b, cos b की तरफ से देखेंगे हम इसको अब। तो cos b की तरफ से देखते हैं बच्चों। So B की तरफ से will observe. If we observe from B, now this guy will be our perpendicular. This guy will be our perpendicular. This will be base, and as always, this is our hypotenuse. And the formula for cos theta is B upon H. So B क्या है आपके पास? Base is BC. So BC upon H. H is what? AB. AB. Now AB cancels out. So AC is equal to BC. अगर दो साइड बराबर हैं, the angles opposite to it are also equal. Which property? Isosceles triangle property. बोलो जल्दी से, सबको सामने आया? बोलो बोलो। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। तो मतलब अगर कभी भी ये रिजल्ट याद कर लो, अगर कभी भी cos a cos b के बराबर होता है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के बराबर होगा। और एक कैसा होगा बच्चे, हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। वैसे अगर ऐसा होता है तो मतलब ए और बी की वैल्यू एक्चुअली में 45 डिग्रीज है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज में, आपको बताऊंगा 1/√2 होती है, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने पढ़ रखा है वैसे। तो सिक्स क्वेश्चन इज डन। सिक्स क्वेश्चन वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 6 ना। चलो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने आपको बोला है जैसे मैं आपको कराऊंगा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। चलो तो करते हैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ऐसे ही क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू आपको, cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, एंड यू आर सपोज टू फाइंड cos थीटा माइनस sec थीटा। चार ऑप्शन आपको देते हैं। पहला ऑप्शन 3/2, दूसरा ये मैंने शायद आपको करा दिया है क्या, मुझे लग रहा है मैंने करा दिया, पता नहीं क्यों लग रहा है। बताओ भाई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने अभी एंगल्स नहीं पढ़ा है मेरे साथ, तो वैसे क्लास में तो पढ़ ही रहे होगे। बिना एंगल्स के भी हो सकता है वैसे तो ये। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। गुड, दो बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश। रुद्राक्ष, राशि, सब। देखो जिसको नहीं आया दे देखो, क्योंकि ये बच्चे एमसीक्यू है तो इतनी जल्दी हो जाना चाहिए था अब तक। गुड निकुंज। देखो बच्चे, कॉस थीटा आपको क्या दे रखा है, विदाउट एंगल करवा रहा हूँ आपको, मतलब ये आपने भी सेकंड एक्सरसाइज नहीं पढ़ी होगी फिर भी हो जाएगा। कॉस थीटा आपके पास 1/2 है। आपको कॉस थीटा माइनस सेक थीटा निकालना है। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा ही तो होता है। याद है? पी बी एच, एच एच बी। यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। If you remember, sec theta is the reciprocal of cos theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. Okay, this is called reciprocal identity, right? Sec theta ulta hota hai cos theta ka. So we can write. Oh, can you people hear me? Am I audible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, एक Yes, मिनट, sir. एक मिनट दो जरा, मैं इसको रीलोड कर दूं। कभी बार कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, यू हैव शोड अप ऑन संडे। तो अब आप ठंड में बढ़िया से सो सकते थे, यू हैव कम अप ऑन संडे टू स्टडी। गुड, कीप इट अप। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करना मत भूलना बच्चों, अभी तो सारा सामने आ जाएगा, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किए तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलो, रिवाइज कैसे करना है, रिकॉर्डिंग से करना है। चलो, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? देखो Yes, sir. Yes, yes, तो बच्चों, मैंने क्या किया है, cos थीटा इज ओवर हियर, cos थीटा इज ओवर हियर, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल, cos थीटा का, तो लिख दिया ऐसे। cos थीटा की वैल्यू 1/2 है। अच्छा ये बताओ, अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 है तो 1/cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी ना। उल्टा हो जाएगा, इधर भी उल्टा हो जाएगा, जब इधर उल्टा किया तो 2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, 2 1 -4 दैट इज -3/2। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही? बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर आपने एंगल्स पढ़ रखा है मेरे से या फिर किसी से भी, तो आपको पता होगा थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, कौन सा एंगल पे होता है? कॉस थीटा 1/2 पढ़े हो? हम्म, कितने पे होता है बच्चे? 60 डिग्री पे होता है, ठीक है, तो पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन। कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा 60 हो। मतलब कि आपको थीटा की जगह क्या डाल देना था, 60 डाल देना था, राइट।
66, तो ये क्या हो जाएगा, बात वही पड़ेगी बच्चों, 1/2 एंड 660 होता है 2, तो वही आ जाएगा, बात वही है, कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात है, ठीक है। लेकिन आंसर क्या होगा, -3/2। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो तो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये हम एमसीक्यूज बना रहे हैं साथ साथ, मैं आपको डिग्रीज वाले कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा, वो भी। पहले लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इफ ए इज एन acute angle in a right angle triangle ABC, right angle at B, right angle at then the value of sin A plus cos A is, so there are four options, equal to 1, and the option greater than 1, and the third option less than 1, and the D option। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इस क्वेश्चन को बड़े स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का है। I know my handwriting is bad, it's my mistake. Hmm. The question is, if A is an acute angle, a right angle triangle ABC, right angle at B, then the value of sin A plus cos A is what? Okay, this is your question. नहीं बालक, देखो समझो, इस क्वेश्चन को समझो बच्चे। अच्छा, आपने ये पढ़ा है क्या कभी बचपन में, सुने हैं? लेट मी राइट इट, हाँ टाइप करता हूँ, देखना बताना मेरे को सुने हो कभी। द सम of any two sides of a triangle is always less than the third side। पढ़े हो ये कभी? हाँ, सुने हो? तो ट्राइंगल जब भी पॉसिबल होता Yes, है sir. जब उनकी कोई भी दो साइड तीसरी साइड से लेस हो, सम मतलब उनका लेस देन। देखो ट्राइंगल की कंडीशन दो पड़ी जाती है, ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है, इफ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल। और अगर एंगल से नहीं, साइड से पता करना है, अगर किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से कम होता है तभी वो ट्राइंगल पॉसिबल होता है, जैसे 3 और 4 लो 7 इससे कम है, 5 और 4 लो इससे कम है, राइट। तो इस तरीके से सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से। चलो देखो, तो बच्चे क्वेश्चन क्या था आपके पास, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्राइंगल एट एबीसी, सो एक एक्यूट एंगल है जो राइट एंगल है ट्राइंगल है एट एंगल बी, राइट, लिखा हुआ है एंगल बी, और ए इज एन एक्यूट एंगल, सो आप एक्यूट एंगल बना लें यहाँ पे, सी भी एक्यूट ही होगा मतलब, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है साइन ए प्लस कॉस ए बताएं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे साइन ए जो पी अपॉन एच होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो अगर आप देखेंगे साइन ए की वजह से पी बी सी अपॉन एच, एच का है ए सी, तो साइन ए ये बनेगा बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए विल बी बी अपॉन एच, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे बच्चों। नाउ व्हाट यू आर फिगरिंग आउट दैट साइन ए प्लस कॉस ए यू आर बीइंग आस्क्ड, राइट, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे बच्चों। अच्छा, let me use a different color so that you can understand this result now। okay, now आप एलसीएम देखिए, दोनों में डिनोमिनेटर में एसी है तो एसी बीसी प्लस ए बी। अच्छा, अब बच्चों एक चीज आपको पता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो अभी आपके पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। एक चीज समझो पहले, एक ट्राइंगल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी, आपके पास ये वाला ट्राइंगल है,
इसमें आपका ए बी प्लस बी सी जो है वो लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, इसी से। किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। तो अगर मैं उस AC को नीचे ले आता हूँ तो यहाँ पे पक्का वन होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जब भी तो AC बना होगा। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे यही वैल्यू है, इसको आगे पीछे लिख लो, चलो आगे पीछे, AB प्लस BC प्लस व्हाट प्लस, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है क्या, ये वाली वैल्यू नहीं है, बिल्कुल यही वैल्यू है, और इसकी वैल्यू किससे कम है, लेस देन वन है। और ये लेस देन वन क्या है आपका, क्या स्टार्ट किया था आपने लेके, साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए हमेशा किससे कम होगा, यहाँ पे वन से कम होगा, इस विल बी लेस देन वन, दैट इज द रिजल्ट। एक बार फिर से समझाएं, देखो। सबसे पहले आपने ट्राइंगल बनाया, बिकॉज ए एक्यूट लिखा हुआ तो ए यहाँ पे लिख रखा जाएगा, जब भी एक्यूट हो तो मतलब वो 90 डिग्री के अलावा है, तो आपने रखा। आपने साइन ए फिगर आउट किया पी अपॉन एस से, कॉस ए फिगर आउट किया बी अपॉन एस से, साइन ए प्लस कॉस ए दोनों को ऐड किया, ऊपर न्यूमरेटर नॉर्मली ऐड हो गए बिकॉज डिनोमिनेटर इज द सेम। नाउ यू वेंट टू दैट रिजल्ट दैट आई जस्ट टोल्ड यू, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द, सॉरी, लेस देन द थर्ड साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। तो आपने देखा, इसको नीचे ले आए तो ये लेस देन वन हुआ, और ये तो यही वाला रिजल्ट है तो लेस देन वन हो गया, इसलिए साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन। क्लियर है सब बच्चों को, बोलो। बढ़िया क्वेश्चन था, Yes, Yes, sir. sir. स्टैंडर्ड का Yes, sir. क्वेश्चन है। चलो तो अब आ जाओ एनसीईआरटी पे, औकात पे आ जाते हैं वापस। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है 7th क्वेश्चन। अगर आपने कभी सेकंड हैंड बुक ली होगी तो पिछले 10 साल से बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करे आ रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल 7/8, you have to figure out 1 plus sin theta, 1 minus sin theta over 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले अगर आपके पास, देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा कि आपने अभी यहीं तक पढ़ा है तो वो, और अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है उस तरीके से, ठीक है, तो समझो कैसे करना। सबसे पहले अगर आपने यहीं तक पढ़ा है तो कैसे, कॉट थीटा आपके पास कितना है, कॉट थीटा 7/8। अगर आपको याद हो कॉट थीटा का फॉर्मूला, अगर नहीं आता तो देखो, PVP/HP ये बताया था, यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, राइट, कोसेक एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक एंड कोसेक, राइट, ये बताया था। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यहाँ से देखा जाएगा, तो बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें अगर मान लो यहाँ पे थीटा है तो पी की वैल्यू क्या है बच्चे, 8 है, और बी की वैल्यू 7 है। तो ये आपके पास ऐसा एक ट्राइंगल आपने बना लिया कुछ, ठीक है। नहीं भी बनाओगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी निकाल सकते, बी और पी की वैल्यू पता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 64 प्लस कितना हो जाएगा 49, 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, और ये क्या हो जाएगा 1113। तो एच स्क्वायर 1113 हुआ तो एच कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1113। सो आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, क्यों निकाल लिया सर, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की नीड होगी, और आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज P/H। पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू 8 है, तो 8/H, कॉस है देखिए दे रखी है आपको पी की वैल्यू, ओके, V/H, तो बी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, 7/√113, रेशनलाइज मत करना, अभी मैं बताऊंगा क्यों। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी एंड a माइनस, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर, राइट। वो अभी मैं ऐसे करा रहा हूँ कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है पूरा, ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू जाइए, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। सो नाउ 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, एंड स्क्वायर रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है बच्चों। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट का कभी स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट हट जाता है बच्चों। नाउ you take the LCM, and you take the LCM, that is 113, 113 minus 64 over 113, 113 minus 49, LCM लिया, right। 113 से अगर आप 64 माइनस करेंगे you will get 49 over 113, 64 over 113, 113 से 113 cancel, so 49 over 64 is your answer, by doing what, by doing normal way, that is lengthy method से, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। What needs to be done, cot theta is given, you have to figure out this value,
आपने देखा साइन और कॉस थीटा आपको नीड है, तो आपने पहले साइन और कॉस थीटा निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? जब आपको P और B दे रखा है, फिगर आउट H, then you figure out sin theta and cos theta, you just plugged it in over here, and you simplified it, you got the value as 49 over 64. Now, if you have studied the whole chapter and you know the identities also, how could you have done this? Quickly, you may have done it like that. In exam, you can do any method, because वहां पे ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है कि बस फर्स्ट एक्सरसाइज से तरीके से करना है। सो a plus b minus b is a square minus b square again, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, डायरेक्ट आप देखो। And you know that 1 minus sin square theta is cos square theta. ये पढ़ा होगा आइडेंटिटी, sin square theta plus cos square theta। अब 10th में अगर आप दिसंबर तक आ गए हैं तो आपने आइडेंटिटी जरूर पढ़ ली है। sin square theta plus cos square theta is 1. That implies cos square theta must be equal to 1 minus sin square theta. And same goes for sin square theta। अगर sin square theta निकालना है तो क्या होगा? 1 minus 1 minus cos square theta, right? तो दोनों की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है। So this will be sin square theta. Now you know that cos by sin, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, cos by sin theta का होल स्क्वायर। और cos by sin कितना होता है? cot theta का होल स्क्वायर। इन्हें कहते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। tan थीटा जो होता है बच्चे sin थीटा बाय cos थीटा होता है, एंड जो cot थीटा होता है क्योंकि वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसकी वैल्यू होती है cos थीटा बाय sin थीटा। तो cot थीटा का स्क्वायर और cot थीटा की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49 over 64। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो आपने 49 over 64 या फिगर आउट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, बोलो। यस मैम, यस सर। ये आसान है, बहुत ही आसान है। और देखो इसका बी पार्ट, देखो बी पार्ट में भी वही तो है, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम ही है बच्चों। देखो इसको सिंपलीफाई करके यही आता है। दे आर ट्राइंग टू लाइक लिटरली प्ले विद योर माइंड। आपको टीज कर रहे हैं कि भाई देखो हमें पता है तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपको आता है। कॉट थीटा का स्क्वायर कर दो यहाँ पे 7/8 इसके वाले पे सेकंड पार्ट के, तो 49/64। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब बनाए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बोलो। शैल वी डू अनदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन? Yes. यस सर। तो चलो तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी आपको एंगल नहीं पड़ा है तो उसके बिना वाला देखता हूँ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा सकता हूँ। आपको यही वाला कराया जा सकता है बच्चों, शायद मैंने आपको करा भी दिया हो क्या। अगर tan थीटा की वैल्यू 4/5 है, ओके, 4/5, देन फाइंड देन द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चंस लिखा हूं मैं अभी, वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा ओवर 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, एक तो ये है बच्चों, इसके चार ऑप्शन दे देते हैं आपको। 1/3, बी है 2/5, सी इज 3/5 एंड डी इज 6। एक तो ये क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इन फिगर In figure, ABCD is an isosceles trapezium. Is an isosceles trapezium. स्टैंडर्ड लिए हो, बनाना पड़ेगा। Its perimeter is, चार ऑप्शन बच्चों। A 8 plus 4√2, डायग्राम अभी मैं बना रहा हूँ उसका। 10 plus 2√2, C 10 plus 4√2, and D 11 plus 4√2। And the diagram is, there is a trapezium that is आपको isosceles given। ये आपको डायग्राम गिवन होगा अगर क्वेश्चन आता है ये वाला तो। और आपको ये भी गिवन है कि इसकी जो ये वाली लेंथ है 3 है, एंड दिस इज आल्सो गिवन दैट दिस गाय राइट ओवर हियर इज 2, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंथ्स है। एंड ये भी आपको गिवन है, ये 45 है, ठीक है, ये 45 है, ठीक है। ऐसा सब बना हुआ है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये सब बना हुआ है। तो आपको फिगर आउट करना है पेरीमीटर ऑफ दिस, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है। गुड राशि, पहला करेक्ट है आपका। चलो करो ये जरा ट्राई। I'm giving you 3 to 4 minutes, everyone.
देखो भाई, दो बच्चों का करेक्ट है पहला पहला पार्ट जो है, ठीक है। तो देखो जरा, पहले पार्ट का आंसर 1/3 होगा, गुड, ठीक है, करेक्ट है पहले पार्ट का आंसर। कैन पीपल हियर मी? यस। Yes, sir. वो पहला वाला जो क्वेश्चन है, काफी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चन। 5 sin θ माइनस 2 cos θ ओवर 5 sin θ, इसको करने के भी दो तरीके थे। एक तो तरीका है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कि आपको देखना है कि क्या गिवन है। व्हाट इज गिवन? tan θ इज गिवन। So by what trigonometric ratio shall I divide the numerator and denominator in order to make this simplified for me? That means अगर मैं numerator, if I divide the numerator guy with cos theta and the denominator guy also with cos, sir आपको कैसे पता चला? Practice. Another thing that I know that tan theta is sin by cos. अभी आपको मैं बताऊंगा क्या बोलना है कुछ ओवर cos theta, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर cos theta से डिवाइड किया। अब ऊपर हम अलग अलग लिखते हैं जरा, तो 5 sin theta बाय cos theta, अलग अलग लिख रहे हैं cos theta, 2 cos theta बाय cos theta ओवर 5, अलग अलग लिख रहे हैं बच्चों, नीचे भी अलग अलग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इट सेपरेटली, 2 cos theta over cos theta. So this cos theta cancel cos theta, this cos theta cancel cos theta, and we know that sin theta by cos theta is tan theta. That is pretty interesting. Minus 2, because 2 is left. This is also sin theta by cos theta is 10 plus 2. Now already tan theta is given to you. What was that? That was 4 over 5. तो इससे आप इस क्वेश्चन को कितना आसान बना सकते हैं? 5 into 4 over 5 minus 2, 5 into 4 over 5 plus 2, 5 से 5 cancel, 5 से 5 cancel, 4 minus 2 is what? 4 minus 2 is 2 and 4 plus 2 is 6. Simplified 1 over 2. तो आपको करना क्या है बच्चों, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आता है, आप टू ऑब्जर्व कि यहाँ पे क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है। तो अगर आप साइन को किससे डिवाइड करेंगे, tan बन जाएगा cos से, और अगर यहाँ पे भी cos से करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब tan ही बचेगा जो आपकी नीड है। सो दैट मीन्स कि आपको ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना है। सो दैट इज व्हाट वी डिड, वी डिवाइड बाय cos, ऊपर और नीचे। तो sin बाय cos विल बिकम tan, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। इधर भी sin बाय cos विल बिकम tan, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा जब आप सेपरेटली लिखेंगे ऊपर नीचे cos से डिवाइड करके। सो दिस विल बी लेफ्ट आउट and we plug in the value of tan theta, which is 4 by 5, we will get this. So I have repeated this for you. Okay, so answer will be first option, that is A. Clear है सब बच्चों को? I hope it is clear to everyone first part. Yes, sir. ऐसे और क्वेश्चंस बनाना, ढूंढो क्वेश्चंस बनाओ खुद से, क्योंकि ये वाले टाइप आते हैं, ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक बार फिर से मिलते हैं, इस सेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ज्वाइन द सेशन अगेन, विल डू द सेकंड पार्ट एंड देन विल डू द रेस्ट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। आओ फिर से जरा।